So I'm going to present a case of bilateral fibular hemimelia. This was a 6-year-old girl. I saw her in 2022. She was mainly a knee walker and she can hardly stand. She had everted feet. जब भी ये खड़ी होती तो feet were goes into eversion and hardly she can stand. Most of the time she used to walk on her knees. As we can see, there callosities on the anterior aspect of the knees as well. If we study fibular hemimelia in detail, so it's a wide spectrum, and usually the deficiency started from the iliac crest up to the foot. So sometimes there is associated acetabular dysplasia, there is a problem in the knee, there is a problem in the feet, there is a problem in the leg. So it's a huge spectrum, and if we come to this patient, so this patient was having a bilateral ankle valgus, and luckily the feet seems to be normal. So these two were the lucky points in this patient. One is that it was a bilateral case, and the second is the feet shape was normal. Knees were in slight flexion and valgus attitude with callosities on the anterior part, and the child was not allowing to perform range of motion at the knee. वो नी को अगर रेंज ऑफ मोशन हम करने की कोशिश करते तो वो कहती थी नहीं मुझे दर्द होता है. ठीक है. सो व्हेन आई एग्जामिन अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, सो कोई बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? knee से सबलस हो रहा है posteriorly. Basically ACL की ACL से डेफिशिएंसी लग रही है सर. ACL PCL दोनों डेफिशिएंट लग रहे हैं अगर आप गौर से देखें दोबारा. ठीक है. एंटीरियर ड्रॉ भी पॉजिटिव है, पोस्टीरियर ड्रॉ भी पोस्टीरियर पॉजिटिव है. ड्रॉ भी पॉजिटिव. ठीक. हाँ, रोटेटरी इंस्टेबिलिटी. ठीक है. सो इट वाज अ बायलैटरल ACL PCL congenital absence of bilateral ACL and PCL. This was the right side and this one was the left side. अगर आप इसको देखें तो this was also deficient. ठीक है. सो मेनली एंड देयर वाज अ टाइट इलियोटिबियल ट्रैक जिसकी वजह से इसको हर दफा जो है ना ये नी सबलक्स होती थी. सो शी एक्सपीरियंस पेन, दैट्स व्हाई शी वाज नॉट अलाउइंग knee range of motion without anesthesia. So I did a stage procedure for her. In stage 1, I did bilateral ankle surgeries in which I did a tendoachilles stenotomy, excision of the fibular analog, and according to Dror पहले this is very important कि हमें fibular analog, ये fibular hemimelia में cartilaginous analog हर केस में प्रेजेंट होता है and we have to remove that. Otherwise वो act as a lateral teether और वो जो है ना आपकी डिफॉर्मिटी की रिकरेंस कर सकता है. ठीक है. सो उसको आप कंप्लीटली एक्सरसाइज करें. एंड टिबियल मीडियल क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटमी विद टिबिया शॉर्टनिंग एंड फिक्सेशन विद के वायर. आई डिड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ड्रोर पहले टेक्निक. उसने जो है ना टेंडन्स को लेंथन किया है लेकिन मैंने टेनोटमी मेनली टेंडोएक्लिस की टेनोटमी की है. ठीक है. और लकीली इन माय पेशेंट द सबटाइलर जॉइंट वाज नॉर्मल. ठीक है. तो मुझे कैल्केनियम की ऑस्टियोटमी नहीं करनी पड़ी. Only tibia osteotomy was sufficient for me to make the foot align beneath the tibia. Similarly, when it come to stage 2 में, that which I did it after 2 months of the stage 1, ये bilateral ACL and PCL reconstruction किए हैं from the iliotibial tract. एंड इसमें क्या किया कि iliotibial tract को लिया, उससे 2 स्ट्रैप्स बनाए. जो फर्स्ट स्ट्रैप था उसको हमने जो है ना फर्स्ट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ACL रिकंस्ट्रक्शन किया बाय पासिंग इट और वीविंग थ्रू द LCL जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है. देन कमिंग टू द ओवर द टॉप पोजीशन और फिर जो है ना इसको नी के अंदर लेके आए. एंड देन अकॉर्डिंग टू ड्रोर पहले टेक्निक वो तो एपिफाइसिस में ड्रिल करके इसके नीचे थ्रू टनल जो है ना वो ACL को निकालता है. And then he used bioabsorbable screw, very small size. So मेरे पास इतने small size के bioabsorbable screw available नहीं थे. So what I did is कि जो intermeniscal ligament है उसके नीचे से जो है ना मैं ACL को ले आया. So it was all physeal sparing and all epiphyseal sparing. So extraarticular ACL reconstruction, then intraarticular ACL reconstruction. और जो PCL था इट्स अ वेरी स्मॉल जॉइंट, तो PCL को हम इंट्राआर्टिकुलर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पोस्टीरियर ड्रॉ को रोकने के लिए देर इज अ सिंपल टेक्निक विच इज कॉल्ड एक्स्ट्राआर्टिकुलर PCL रिकंस्ट्रक्शन. उसमें क्या करते हैं कि जो सेकंड स्टेप हमने इलियोटिबियल ट्रैक का लिया था that we pass beneath the patellar tendon, bring it medially and stitch it to the MCL.
एंड और फिर हम उसको सुपीरियरली ले जाते हैं जहां पे एडक्टर ट्यूबरकल पे एडक्टर मैग्नस लगा हुआ है, उसके थ्रू वीव करके एंड देन ब्रिंग इट डाउन एंड स्टिच ऑन टू इटसेल्फ. सो इट विल गिव अ पोस्टीरियर स्टेबिलिटी, पोस्टीरियर ड्रॉ को नेगेटिव करेगा. So these were not true super ankle and super knee procedure because क्योंकि मुझे इतने सिवियर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे पेशेंट में पैटेला भी अलाइन था, ठीक है, तो इसलिए मुझे पैटेला रीअलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं आई. नी फ्लेक्शन पे भी नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जो थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द टाइट इलियोटिबियल ट्रैक. जैसे ही उसको मैंने रिलीज किया प्रॉक्सिमली, सो नी गेट स्ट्रेटन. एंड सिमिलरली जो सुपर एंकल प्रोसीजर है दैट मुझे उसमें सिर्फ टेनोटमी और क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटमी विद टिबिया शॉर्टनिंग की है, ठीक है, मुझे कोई कैल्केनियम की ऑस्टियोटमी नहीं की. लेकिन अगेन आई टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्निक ऑफ द सुपर एंकल एंड सुपर नी प्रोसीजर. सो दैट्स व्हाई आई मेंशन इट. अगर आप ये देखें अगेन, दिस वाज कंजेनिटल एब्सेंट ऑफ एसीएल एंड पीसीएल, ठीक है, ये राइट साइड, दिस वन वाज द लेफ्ट साइड, और ये दिस वाज इमीडिएटली ऑन टेबल, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि नी स्टेबल हो गया, ठीक है. ठीक है, दीज वर द एक्सरेज. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ एक्सरेज में बीच में मिसिंग है, ठीक है. सो द राइट साइड अगर आप देखें, के वायर पास किए फ्रॉम बीनीथ. ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो पास द के वायर. समहाउ आई मिस द कैल्केनियम, ऑल्दो आइडियली ये कैल्केनियम के थ्रू जानी चाहिए थी, ठीक है. So these were the pre-op, how the child used to walk, hardly can stand on the feet with eversion, and most of the time she used to walk on the flex knees. And this was after second procedure, this was a 3-month post-op. आप लोगों को नजर आ रहा है सबको? जी जी नजर आ रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह. ओ, अच्छा, दिस वाज सेकंड, दिस वाज 6-month पोस्ट-op. कुछ अर्सा मैंने इसको A4 ब्रेस में रखा है, ठीक है. जरूरी है, जरूरी है. हाँ, और अब आप देखें कि शी कैन इवन क्लाइंब द स्टेयर्स, ठीक है. ये इसकी 2 दिन पहले इसके वालिद साहब ने मुझे ये वीडियो भेजी है, ठीक है. शी इज नाउ 3 years post-op. So this is the final, sir, 3 years post-op. Child is about now 8 years old. और ये उसकी वीडियो वालिद साहब ने कल भेजी है. एक तो लेसन हमें ये मिला कि सिमिलर केसेस हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं. मुख्तलिफ आइडियाज है, मुख्तलिफ. अब पहले वाले केसेस में ये चीजें हमने नहीं लर्न की थी, उसमें हमने सीधा सीधा सूडो आर्थरोसिस को जैसे लर्न किया, ऐसे इसमें हमने नी रिकंस्ट्रक्शन भी लर्न किया, किस तरीके से आगे जाना चाहिए. सो दिस इज केस ऑफ नाउ 8 years एज, मगर 3 years में इसको फिबुलर हेमीबीलिया था, ACL PCL रप्चर थे. And then she was operated with the resection of the pathological segment with the fixations and tendoachilles stenotomy. Next stage, she was had reconstruction of ACL and PCL with iliotibial tracts. So now case is open for the discussion. Please go ahead. ACL को आपने कहा, ACL PCL दोनों को भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या सिर्फ ACL को करेंगे? दोनों को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इंटरकंडाइलर नॉच होती है बच्चों में वो बहुत छोटी होती है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसमें दोनों को ACL PCL को साथ लेके आए. सो देयर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर PCL रिकंस्ट्रक्शन. उसमें क्या करते हैं कि MCL से आप टेंडन गुजारते हैं, ठीक है, एंड देन टेक इट अप टू द फीमर पे, आप उसको एडक्टर ट्यूबरकल पे जहाँ पे एडक्टर मैग्नस लगा होता है उसके थ्रू वीव ऑफ कर देते हैं. सो इट विल मेक अवर पोस्टीरियर ड्रॉ नेगेटिव, ठीक है. सो अगर आपने देखा हो तो राइट साइड नी वाज वेरी सबलक्सिबल, इट वाज गोइंग एंटीरियर पोस्टीरियर बोथ साइड्स पे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ड्रोर पहले ने भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ACL PCL दोनों को रिकंस्ट्रक्ट करें. ऑल्दो इन समटाइम्स हम जो है ना ACL लिटरेचर में सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन भी लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल. लेकिन आई गेस कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि
एंड इसमें कोई इतना टाइम लगता भी नहीं है और ना कोई इतनी डिफिकल्टी आती है। वी यूज द सेम इलियोटिबियल ट्रैक, उसको हाफ करके हाफ पीसीएल के लिए यूज करें, हाफ एसीएल के लिए करें। सर ये इलियोटिबियल बैंड का एसीएल और पीसीएल के स्ट्रेंथ के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा? स्ट्रेंथ के ऊपर? स्ट्रेंथ के ऊपर जी। सर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, फ्रैंकली स्पीकिंग ये आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द आपने अगर जो उसकी टाइटनिंग है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि आपने जब एसीएल को टाइट करना है, सो हमने जो है ना लैकमैन पोजीशन में जो है ना इसको टाइट करना है, ठीक है। और जो 30 डिग्री आप उसको फ्लेक्शन पे ले आते हैं, ठीक है, और ताकि आपका लैकमैन नेगेटिव हो। और उस लैकमैन पोजीशन पे जब आप पहले एसीएल को टाइट करते हैं ना, ठीक है, तो पीसीएल जो है ना ऑटोमेटिकली आपके लिए उसकी पोजीशन जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है। सो इट शुड बी नॉट दैट मच टाइट कि आपकी जो है ना नी रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल लॉक हो जाए, बट इट शुड नॉट बी दैट मच लूज कि वो आपको नी स्टेबल ना करके दे। सर ये डॉक्टर सईद, वेरी नाइस केस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यू डिड वेरी वेल एंड द पेशेंट इज वॉकिंग। जो आप एसीएल और एलसीएल के लिए जो इलियोटिबियल बैंड जब एलसीएल से पास करते हो, जो एमसीएल से पास करते हो, तो इसका इनिशियल जो एंड है वो आप टाई कर देते हैं एलसीएल के साथ और एमसीएल के साथ, और जब आप एडक्टर कैनाल से, वो तो वापस अपने इलियोटिबियल बैंड के साथ ही नॉट हो जाएगा। और जो एमसीएल से जब आपने फीमर में ड्रिल करके फिर उसको इंटरकॉन्डाइलर नॉच में लाके इंटरमिनिस्कस लिगामेंट के साथ आपने उसको टाई किया? नो, विदाउट ड्रिलिंग इंटरमिनिस्कल लिगामेंट को आइडेंटिफाई किया है। बच्चों में इंटरमिनिस्कल लिगामेंट जो है ना काफी इट्स अ बिग स्ट्रक्चर, उसके नीचे आप टनल बनाएं, ठीक है, बिटवीन द एपिफाइसिस एंड इंटरमिनिस्कल लिगामेंट, एंड देन ब्रिंग इट डाउन बीनीथ इट, ठीक है। दिस इज नॉट माय टेक्निक, ये लिटरेचर में है, ठीक है। ऑल्दो ड्रोरपेरे ऑलवेज एम्फेसाइजेस के, वो कहता है कि एपिफाइसिस में ड्रिल करें एंड यूज अ स्मॉल पॉसिबल बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू, ठीक है। बट आई फाउंड दैट टू बी वेरी डिफिकल्ट एज वेल, एंड मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही परसीव किया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मैंने इंटरमिनिस्कल लिगामेंट के नीचे ही जो है ना एसीएल को गुजार के एंड देन स्टिच इट टू द इंटरमिनिस्कल लिगामेंट को जो है ना उसके साथ एसीएल के साथ स्टिच कर दिया, एंड ऑल्सो स्टिच इट टू द एपिफाइसिस एज वेल। जो ओरिजिन है, जो इलियोटिबियल बैंड का जो फर्स्ट एंड है, वो एलसीएल और एमसीएल के साथ ही स्टिच हो जाता है? यस, एक्चुअली आपने एलसीएल के थ्रू जब इसको गुजारना है, सो यू हैव टू मेक इट अ वीव। आप एलसीएल में एक टनल बनाए, उसके थ्रू गुजारे। सो ठीक है। आई गेस यू आर अ हैंड सर्जन, आपको पता है कि वीविंग कैसे करनी है, ठीक है, लाइक जी जी। पल्विट। हाँ, अच्छा ये सर बेहतरीन केस है, जबरदस्त केस सर। और ये ड्रोरपेले ने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो सुपर नी और सुपर एंकल और इवन सुपर हिप प्रोसीजर है, दीज आर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोसीजर्स। तो उसमें तो जो पूरा सुपर नी हम करेंगे तो उसमें तो 6-7 चीजें करते हैं, लेकिन अगर आप उसमें 2-3 चीजें भी करें या 4 चीजें भी करें तो उसमें ये उसको सुपर नी ही कहते हैं। तो ही डिस्क्राइब इट with patella dislocation, without patella dislocation or subluxation, with knee dislocation, without knee dislocation। तो it's a spectrum of disease and spectrum of procedure। तो डॉक्टर साहब ये सुपर नी प्रोसीजर ही है, उसकी एक टाइप है। दूसरे है कि जो मैकिन्टॉश और रिवर्स मैकिन्टॉश एसीएल और पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन है, वो जो रिवर्स मैकिन्टॉश है पीसीएल की रिकंस्ट्रक्शन, इसमें टीबीएल की एक्सटॉर्शन होती है। तो अक्सर इस केस में बिकॉज द इलियोटिबियल बैंड इज सो टाइट दैट इट एक्सटर्नली रोटेट्स द टिबिया एज वेल, बाकी डिफॉर्मिटीज भी साथ होती हैं, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स और वेलगस। और हम जब एमसीएल जो पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो मिडिल साइड से उसको हम जब टाइट करते हैं और अपने आप स्टिच कर लेते हैं तो टिबियल एक्सटॉर्शन भी इसकी रिड्यूस हो जाती है। तो द नी बिकम्स वेरी स्ट्रेट एंड इट रिड्यूसेस वेरी वेल। तो इट्स बीन वेरी वेल डन। तो इसमें पीसीएल करना बहुत ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इट्स वेरी इजी। द ओनली प्रॉब्लम जो हम तो अभी 1-2 साल से करते आ रहे हैं, द ओनली प्रॉब्लम विच वी परसीव एंड पीपल आस्क इज दैट इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड। और हम एसीएल और पीसीएल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, एंड दे आर नॉट ग्रोइंग। तो इसकी जो 5 to 6 और to 8 years बाद इसमें एसीएल और पीसीएल की क्या सिचुएशन होगी, वो इस
इस टाइम आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये तो ग्रोथ नहीं करते साथ में, ऑल्दो इट्स एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, और अगर फाइसिस में है तो फाइसिस तो नहीं ग्रो करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कार्टिलेजिनस ग्रोथ होती है। तो लेकिन वंस द नी इज स्टेबल, मेरे तकरीबन 2 इयर्स तक आ रहे हैं ये केसेस, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई परसीव दे के बाद में अगर कोई ACL PCL का प्रॉब्लम हो तो फिर हम एडल्ट सर्जन से रिकंस्ट्रक्ट। इसमें ये प्लस पॉइंट भी है, इसमें सारे हैमस्ट्रिंग्स और पेटेलर टेंडन और ये चीजें हमारी स्पेयर हो जाते हैं। इफ फर्दर अगर इसको ACL PCL चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल है हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस सर केस। इन जो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, ACL PCL जो कर दिए, जो भी लिगामेंट हमने रिकंस्ट्रक्ट किए, ये ग्रोथ उस पेस के साथ होती है, जो बोन के साथ, कार्टिलेज के साथ, क्योंकि उसी उस वक्त जब किया था, अब जो ग्रोथ बढ़ रही है तो वो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड देन ग्रो मे बी आगे चल के देखें क्या होता है। जी अच्छा यासिर। सर, दो तीन चीज़ें। एक तो केस इज वेरी एक्सीलेंटली डन, इसके अंदर नी भी स्टेबल हमारा हो गया है, पेशेंट ने वॉक करके भी दिखाया है। अच्छा, मैंने सिर्फ दो तीन चीज़ें डिस्कस किए करनी थी कि जो फिबुलर एनलेज है, ये हमेशा हर केस में डिफरेंट डेंसिटी का होता है। किसी में बहुत टाइट स्ट्रक्चर मिलता है और कहीं पे हम ढूंढते रहते हैं बहुत ही रूडिमेंट्री सा एनलेज मिलता है। तो इसमें भी थोड़ा सा बताइएगा कि एनलेज आपको किस तरह से मिला, क्योंकि हर केस में मिलता भी है या नहीं मिलता है। और दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो आपने मैकिन्टॉश प्रोसीजर के हैं या ड्रॉर पेले वाला जो प्रोसीजर है, इसमें कभी आपने टनल ड्रिल किया है एपिफाइसिस में? क्योंकि मैंने कभी ड्रिल नहीं किया। हम कभी भी जब देखते हैं तो लेंथनिंग के बाद जो है ना, ये हमें लिगामेंटस लेक्सिटी ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, या चाइल्ड का एज बढ़ती है, वेट बढ़ता है, जो वॉकिंग करता है उसके बाद ये ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। अर्ली केसेस में इतना प्रोनाउंस नहीं होता, बिल्कुल माइल्ड सा सबलक्सेशन होती है, लेकिन बाद में जाके फिर बहुत सीवियर हो जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो चाइल्ड खुद जो वॉक कर रहा है, स्ट्रेट क्लाइंबिंग भी कर रहा है, कोई इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही इसमें। फिबुलर एनालॉग इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल केसेस, ठीक है। और मैंने अब तक जितने भी फिबुलर एमिमिलिया किए हैं एंड तो उसमें मुझे तो मिला है, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इवन जब आप स्किन इंसिजन देखते हैं, ठीक है, ऑन द लैटरल मेलियोलस, ठीक है, सो मेनली अगर आप उसको फील करें एज यू गो डीप डाउन, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना आपको फील होना शुरू हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के फिबुलर एनालॉग को अलॉन्ग विथ पीरियोस्टम निकालना है। आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाइसेक्शन होना, दैट इज पीरियोस्टम आपका साथ निकल जाए, अदरवाइज जो है ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें लेटर ऑन जो है ना फिबुला की बोन बन सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम एक्सरसाइज करें, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ lateral teether and it will cause recurrence of the deformity. पहले तो सईद भाई, वेरी गुड केस, बड़ा मजा आया देख के ये केस के, जिस तरह ये ACL एंड PCL जो है ना वो रिकंस्ट्रक्शन किया गया, और साथ में जो है वो एंकल प्रोसीजर किया गया, एटलीस्ट लेंथ मेंटेन और यूनियन भी जो है वहां पे अचीव हो गई है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम इलियोटिबियल बैंड के अलावा कोई और मसल टेंडन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसमें ले सकते हैं? और सेकेंडली ये है कि अगर हम TBL लेंथ देखें, दोनों जो लेंथ ऑल्दो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लेकिन छोटी हैं एज कम्पेयर टू द फेमरल, तो क्या आपका लेंथनिंग प्रोसीजर का इसमें कोई प्लान बनेगा? क्योंकि बच्चा वैसे ऑलरेडी 8 इयर्स का हो गया हुआ है, तो क्या इसमें हमने लेंथनिंग प्रोसीजर्स ऑफर करने चाहिए इसको? जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कोई और ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं, जी। देखें, अगर आप फिबुलर एमिमिलिया की स्पेक्ट्रम को देखें, सो ऑल द लैटरल साइड ऑफ द लेग स्टार्टिंग फ्रॉम द आइलियक क्रिस्ट अप टू द फुट, वो डेफिनेट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, मतलब ना हमारे पास पेरोनाई है कि हम उसको यूज करें, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट इज कि हमें हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ इलियोटिबियल ट्रैक जो कि अवेलेबल है हमारे पास, मैक्सिमम लेंथ जो कि दोनों को एड्रेस कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के इन केसेस में जो इलियोटिबियल ट्रैक होता है, दैट इज टाइट एंड इट एक्ट एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो हमें उस डिफॉर्मिंग फोर्स को भी हटाना है। सो दैट्स व्हाई इलियोटिबियल ट्रैक इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस जो है ना हम इसमें रिकंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। लेंथनिंग, सर आई एम नॉट अ लेंथनिंग सर्जन, मैं इनफैक्ट अवॉइड करता हूँ, ठीक है। जो लेंथनिंग कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा है, और मैं तो लेंथनिंग नहीं करता सर, और इस केस में तो बिल्कुल नहीं करूंगा। द रीजन इज के बायलैटरल लेग्स जो है ना दे आर इक्वली अफेक्टेड, ठीक है। लेंथनिंग से बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। Thank you so much, sir. Lengthening, it's basically a pure
पेशेंट्स डिसीजन। और इसमें अगर मैं टिबिया में तो लिंकिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो आर स्टेबलाइज्ड। ये अगर ये मैं बायलैटरल है ना, 100%, अगर यूनिलेटरल हो जी तो। सर, यूनिलेटरल यूनिलेटरल हो हो तो तो फिर मैं फीमर को यूज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड द नी इज स्टेबल इनफ। तो जब तक मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, एंड इट टेक्स अराउंड एवरेज, वो कहते हैं कि 4 इयर्स के बाद लेंथनिंग आप प्लान कर सकते हैं। सुपर नी नहीं, इनिशियल लेंथनिंग 2 इयर्स के बाद कर सकते हैं, और फिर हर लेंथनिंग 4 इयर्स के बाद कर सकते हैं। तो लेंथनिंग, लेकिन उसमें यह है कि हैमस्ट्रिंग हमारे जो है ना टाइट ना हो जाए। क्वाड्स तो नहीं टाइट होते, लेकिन हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से नी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके फिर लेंथनिंग का हम सोच सकते हैं। बायलेटरल केस है तो जी सर। तीन क्वेश्चन है सर। एक तो ये कि काइंडली हमें गाइड कर दीजिए कि ये तो बच्ची जो है ये थोड़ा ओल्डर एज में आपके पास प्रेजेंट हुई, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जब हम ये फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिबुलर एनलेज। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एमआरआई का रोल है प्री ऑप, कि हम फिबुलर एनलेज को कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर लें पहले बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी, और उसको कंप्लीट ताकि हमारा वो उसकी एक सीएन हो। और तीसरा सवाल सर मेरा ये है कि जो आपका सुपर नी प्रोसीजर है उसके बाद आपका जो इमोबिलाइजेशन का प्रोटोकॉल है सर वो क्या है, उसमें आप कितने डिग्री पे उसको नी को रखते हैं, कितनी देर के लिए प्लास्टर में रखते हैं, और फिर ब्रेसिंग प्रोटोकॉल सर, अगर काइंडली ये तीन क्वेश्चन है। अच्छा, रिगार्डिंग एमआरआई, डॉक्टर नासिर, मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, लेकिन आई गेस कोई इसकी एज सच इतनी नीड नहीं आती, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना फिबुलर एनालॉग इज प्रेजेंट, ठीक है। मैं तो प्रैक्टिकली नहीं करता, और जितना मैंने ड्रोर पहले का वर्क देखा है वो भी एमआरआई नहीं करता, आई गेस, इफ आई एम राइट, ठीक है। सेकंड, आपने कितने अरसे के लिए, ठीक है, सो इट्स अबाउट 6 वीक्स, और यूजुअली जो नी की पोजीशन होती है वो 30 डिग्री फ्लेक्शन पे हम रखते हैं, ठीक है। मिनिमम एज, सर, एज जब भी मैं देखता हूँ, इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल एज दैट इज इम्पोर्टेंट, इट्स बॉडी साइज, आपके यस, बच्चे का ग्रेट, बॉडी साइज कितना है। दैट्स समटाइम्स ग्रेट। आपके पास 3-4 साल वाला 6 साल का लग रहा होता है, ठीक है, सो देन आई ऑपरेट। समटाइम्स आपको इवन 6-7 साल वाला भी 2 साल का लग रहा होता है। इट्स अ बोन एज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई गेस दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन जनरली बिटवीन 4 to 6 years ऑफ एज जो ये बच्चे होते हैं, दे आर मोर अप्रोप्रिएट कि उनको आप ये प्रोसीजर करें। नॉट बिफोर 2 इयर्स। बिफोर 2 years सर मैं करूंगा। मेरा जो नेक्स्ट, अगर आपने टॉपिक दिया, ये देख रहे हैं आप लोग, यूनिलैटरल फिबुलर हेमिमिलिया विद कंट्रालैटरल क्लब फुट। 2 year से करेक्ट। पहले अगर करना हो तो यूनिलैटरल फिबुलर हेमिमिलिया में एम्पुटेशन जो है ना, इफ डन बिफोर 2 years, दैट इज वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। मैं नेक्स्ट टाइम ये केस प्रेजेंट करूंगा कि इंशाल्लाह, रोल ऑफ इंशाल्लाह। एम्पुटेशन। डॉक्टर सईद, एक्सीलेंट केस। थैंक यू। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पेले जो है वो एंकल स्पेयरिंग की बड़ी बात करता है कि एंकल जो है, जो आपने फिक्सेशन की है वो आपने थ्रू एंकल जॉइंट की है, हालांकि आप कह रहे थे कि कोई फुट की एज सच डिफॉर्मिटी नहीं थी। तो आप जो फिक्सेशन है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर यानी अबव एंकल हो सकती थी। और दूसरा, आपने जो टिनोटमी की है, तो जब आप ऑस्टियोटमी कर रहे हैं टिबिया की, तो फिर आपको जो है, क्योंकि पहले जो है वो इस पे भी एम्फेसाइज करता है कि जो है टेंडन लेंथनिंग वगैरह वो ना की जाए, इसकी बजाय वो जो फिबुलर हेमीमिलिया में वो जो सुपर एंकल प्रोसीजर कर रहा है। तो ये मेरे दो क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट ऑन दिस टू अच्छा क्वेश्चंस। सर, आई एग्री के एंकल को स्पेयर करना चाहिए। ऑलवेज स्पेयरिंग एंकल इज मोर रिवॉर्डिंग देन फिक्सिंग एन एंकल, ठीक है। लेकिन इट दीज वर वेरी स्मॉल बोन्स, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स देम, एंड आई ट्राइड sparing the ankle in some of my cases, and actually I was not satisfied with the results, ठीक है। कभी मौका मिला तो उनको भी मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और दूसरा सर, आई गेस वी ऑल हैव टू एग्री, ड्रोर पहले एक सुपर आदमी है, ठीक है, जिसने पूरी ऑर्थोपेडिक का नक्शा चेंज किया हुआ है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो हर बंदे के हाथ में नहीं आ रहे, ठीक है। वी ऑल एग्री, इवन आई वेंट टू यूएस 2 times, ठीक है, और पीपल उसको बहुत ज्यादा इस चीज पे वो करते हैं, ऑल्दो वो ऑलवेज प्रेजेंट के मेरे 100% रिजल्ट है। आई हाईली अप्रिशिएट उसके जो प्रोसीजर्स है, जो
टेक्निक्स है, जो थॉट प्रोसेस है, दे आर ऑलवेज सुपर। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो मैंने जितने भी लोगों से डिस्कस किया है, सो सब कहते हैं कि हमारे हाथ में इस तरह के रिजल्ट नहीं आते जिस तरह वो कर रहा है। ठीक है, सो इन दिस आई वुड कम टू बेंजामिन जोसेफ। जो वो कहता है, वो कहते हैं कि वो देखिए, नेल पास करता है। वो कहते हैं कि अगर आपका एंकल लैटरली स्टेबल नहीं है, इनफैक्ट ये बच्चा जो है ना, क्योंकि ये मेरे पास वापस आ नहीं रहा, इसकी एक साइड पे अभी भी मैंने ट्रांस एंकल जो है ना के वायर रखी हुई है, नहीं निकाला उसको, अभी भी है। ठीक है, ये अभी फॉलो अप में आ नहीं रहा कि मैं उसको निकालूं। ठीक है, लेकिन बेंजामिन जोसेफ कहते हैं कि अगर आपका लेटरल सपोर्ट नहीं है ना, तो आप इंट्राआर्टिकुलर जो है ना टिल ग्रोथ उसको के वायर रखें। ठीक है, और इवन उसकी जो सीपीटी की टेक्निक है, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड मैं अपने तमाम सीपीटी के पेशेंट्स में भी ट्रांस एंकल जो है ना वायर रखता हूँ। ठीक है, और इनफैक्ट इन बच्चों में भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वायर निकालने में जल्दी ना करें, और लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 6 months to 1 year तक रखें इसके, अदरवाइज योर एंकल वुड गो इनटू वैल्गस। सर मैंने थोड़ा सा काम जो है ना डॉक्टर पहले के साथ किया, तो आई हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। यूजुअली जो है वो डॉक्टर पहले ये करता है कि एंकल को फिक्स नहीं करता, बट इन सेकंड स्टेज ही इज डूइंग आर्थोडिसिस ऑफ एंकल जॉइंट एंड ही इज डूइंग ऑन द सबटेलर मूवमेंट एज फॉर द एंकल कंसर्न। नी में जो होता है, जो आपने कहा था कि इलियोटिबल बैंड की बात जो की थी आपने, उसमें ये करता है कि डिपेंड ऑन पेशेंट एज होता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द फाइसिस। कभी कभार ये करता है कि वो जो इलियोटिबल बैंड को एंकर करता है फाइसिस के साथ, और कभी जो क्या करता है, ये ऑब्लिक टनल करता है बिफोर द क्लोज लेवल ऑफ द फाइसिस। एपीफाइसिस से एक विंडो बनाता है जिसके साथ जो है वो एंकर करता है इनसाइड। ठीक है, आई वुड एग्री विद ओटी में जब परवेज मैंने साहब, क्योंकि उन्होंने ऑपरेट किए हैं पेशेंट जो उनके साथ उन्होंने ऑब्जर्व। ठीक है, आई वुड एग्री विद परवेज साहब पॉइंट्स। दीज आर ऑल वैलिड पॉइंट्स। सर एक छोटा सा होमवर्क दे दूं नेक्स्ट टाइम के लिए? जी जी बिल्कुल दे दें सर, ये तो अगर एक एक बच्चे को क्लब फुट है और दूसरी साइड बिल्कुल है ही नहीं, तो उसकी जो है ना नेक्स्ट टाइम सबके लिए, तो उसकी मेंटेनेंस जो है ना, उसके लिए हम ब्रेस कैसे यूज करेंगे? आई गेस दिस होमवर्क फॉर ऑल। ग्रेट। ठीक सही, है, और नेक्स्ट टाइम मैं ये केस प्रेजेंट करूंगा विद चलिए यूनिलैटरल फिबुलर हेमिमिलिया विद कंट्रालैटरल क्लब फुट। प्रोफेसर अति को डिटेल Sir, में thank you कंक्लूड very करें। much. That was an excellent case presented by Dr. Said. And I think there are different ways to sometimes to tackle the same problem. And in this case, the end results speak for itself. And these are the excellent results. And one thing I want to clear that is about the fibular analog. As the Dr. Said has told us that it is present in most of the cases, and especially if you have got all the 5 toes present, and be sure that in 100% cases the fibular analog will be present. It may be absent in few cases when you don't have the lateral 2 toes, but in most of the cases it is present, whether the toes are there or not. But in case if all 5 toes are there, in 100% of the cases it will be there, and we need not to do even MRI for that, and we have to tackle it as it is a tethering force. And if we don't tackle it, and the valgus foot deformity will recur. And other anomalies we have to look for is in the knee. And this was a beautiful case in which there was ACL and PCL were absent. There may be a rotatory deformity, and there may be a patellar dislocation. And I agree with Dr. Said that in this case, in this transfer fascia was used to reconstruct the ligaments, and the obstructing force was removed. In my opinion, this case was excellently tackled, and the end results were even more better. इसके फाइनली कंक्लूड में ये करूंगा कि केसेस को शाये न करें, एक जैसे केसेस जरूर प्रेजेंट करें, बार बार प्रेजेंट करें, डिफरेंट मिलेंगे हमेशा। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन द 3rd of November सुबह को 8:30 बजे, और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे फोर्टनाइटली एज रिक्वेस्टेड।